یہ جو میرا عشق ہے تم سے او دلبرا. سنا ہے you don't believe in marriage. لڑکیوں سے میرے مراسم اور دوستیاں، اسی لیے تو مجھے لگا تھا مجھے پیسے میں ٹھیک. کیا دیکھو میں نے کہا اور اس نے کر دیا. اگر وہ تمہاری طرف نہیں آتی تو جانے تو جہاں جاتی ہے. محبت کرتے ہو نا تو ٹک کر بیٹھو. تم 25-30 لاکھ کا بندوبست کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. تم بھی بہت پیار کرتے. فیصلے اس کے چہرے پہ لکھے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بتا دیتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. تم خاموش کیوں ہو؟ خاموشی میں بھی تو باتیں ہوتی ہیں. تمہاری قسم مذاق نہیں کر رہا تھا. I am serious. Absolutely serious. میں پیار کرتا ہوں تم سے. No hard feelings. Of course not. Have a nice day. You too. گیس کرو لیٹر کہاں سے ہے؟ سم انٹرویو کال. ارے وہ تو ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کال آئی کہاں سے ہے؟ بلال عبداللہ. I can't believe it. یہ پڑھو. دکھا دیا. خواہ وہم ہو گیا آپ کو. دل دکھے تو دکھتا ہوا نظر آتا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں فرزانہ کہ دل دکھتا ہوا دیکھا تھا میں نے. Is he here? Yeah, but he will be leaving tonight. Anyway, Miss Hamsha آپ کو آپ کا ٹریننگ اسکیجول بتا دیں گی اور I hope Hamsha's presence will help you a lot. Definitely. چلے کیا؟ کر لو، چاہو تو انکار کر دو. لیکن میں انکار کیوں کر دوں؟ اس کی وجہ بتائیے. اور جب انکار کرنے کی وجہ ہے تو جوائن کیوں کروں؟ وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ابا نے لیٹر وصول کر لیا، لا کر تمہیں دے دیا. پیزا کھا لیا تھا. پیزا کہاں سے کھا لیا؟ 100 روپے تھے تمہاری جیب میں. تمہاری قسم کھا لیا تھا، پر یہ نہیں بتاؤں گا کہ کھلایا کس نے تھا. چلو خیر، میں بھی پوچھے بغیر مر نہیں جاؤں گی. کوئی ہیلپ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کام کرے اور اس سے آپ کا آمنا سامنا نہ. آمنا سامنا نہیں ہوگا. یہ میرا کہ صدف کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی بھائی کو بلڈ کینسر ہے، تو صدف اپنی بھائی کی رپورٹ لے کر ہسپتال جاتی ہے. تو ڈاکٹر صدف کو بتاتا ہے کہ تمہاری بھائی کا کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور تمہارے باپ کو بھی یہ صدمہ کھا گیا ہے. تو صدف یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کے باپ کی موت. دوسری طرف بھائی کا طبیعت بہت خراب ہے. جب صدف اپنے گھر آ جاتی ہے، دروازہ بند کر بہت روتی ہے. تو زاویار کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صدف جان چکی ہے اس کی بیماری کے بارے میں. تو اس لیے وہ جا کر
जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोचती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला
का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा।
कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को न बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोचती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को न बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को न बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को न बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियर को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर
सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदफ भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदफ सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदफ को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदफ अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदफ को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदफ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदफ अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदफ जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदफ से कहता है कि सदफ तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना
ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा, और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा, और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोचती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाइक को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाइक की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है। तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाइक का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा खा गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाइक का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है, दरवाजा बंद कर बहुत रोती है। तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोची है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाइक का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाइक को बचाऊंगा।
कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाई को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाई की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाई का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाई का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी और मैं अपने बाप का भी बदला लूंगी। तो सदब सोचती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करूंगी और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमा के अपनी बाई का ऑपरेशन करवा दूंगा और मैं हर हाल में अपनी बाई को बचाऊंगा। कि सदब को मालूम हो चुका है कि उसकी बाई को ब्लड कैंसर है। तो सदब अपनी बाई की रिपोर्ट लेकर अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सदब को बताता है कि तुम्हारी बाई का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बाप को भी ये सदमा का गया है। तो सदब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी तरह उसके बाप की मौत। दूसरी तरफ बाई का तबीयत बहुत खराब है। जब सदब अपने घर आ जाती है दरवाजा बंद कर बहुत रोती है तो जावियार को भी पता चल जाता है कि सदब जान चुकी है उसकी बीमारी के बारे में। तो इसलिए वो जाकर सदब से कहता है कि सदब तुम डॉक्टर के पास गई थी ना और मैं कभी भी नहीं बच जाऊंगा और मेरी ही वजह से बाबा भी इस दुनिया से चला गया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब्बा तो चला गया लेकिन मैं अम्मी को नहीं खोना चाहता और तुम मेरी बीमारी के बारे में अम्मी को ना बताना। तो सदब भी हिम्मत से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा और मैं तुम्हें मरने कभी भी होने नहीं दूंगा और मैं इस हालात का डटकर